देखो हमने तो टॉपिक स्टार्ट कर लिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। उसमें आज कौन सा पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जैक्टली परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन इज नथिंग बट इट इज द मास परसेंटेज। परसेंटेज कंपोजिशन इज नथिंग बट द मास परसेंटेज। अभी ये फॉर्मूला यूज करके मतलब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला मैं आपको बोल देती हूँ। देखो परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला इज percentage composition is equal to, listen carefully that formula, atomic mass of an element into, now see percentage we want to find out, that's why we have to take here 100 and divided by the molar mass of the compound, molar mass of the compound। अभी देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इस फॉर्मूला के लिए। कौन सा एग्जांपल है? देखो अभी आपकी 10th के एग्जाम हो गई, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में हमने क्या देखा है, जैसे कि देखो आपको अगर मिल जाते हैं 500 आउट ऑफ 600, ठीक है, ये 600 जो है ना वो है मोलार मास और ये जो 500 है ना ऑप्टेन मास वो है एटॉमिक मास। और इसका हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसा ही ये फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन। समझ में आ गया फॉर्मूला? तो इसका यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ सी, अगर हमें एक कंपाउंड दिया है, कंपाउंड कौन सा है? देखो H2O मॉलिक्यूल सिंपली कंसीडर करते हैं। First one, every time see, I am taking simple example in atomicity also, in the molar mass also we have taken that simple example, that is the H2O. Here also we will discuss two examples to clear your concept about the calculation of percentage composition. So how to find out? Simple calculation is there. Now see which molecule? H2O molecule. So in that which elements are there? So we will make one table in which we have to write here which elements are there. One is a hydrogen, second one is a oxygen. Okay. Now see how many elements are there means number of atoms. For the hydrogen there are the 2 atoms and for oxygen only 1 atom. Next point is that atomic mass. Atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of oxygen is 16. So we have prepared this table for this calculation. Next step, what is the next step? Next step is molar mass. Molar mass or molecular weight, anything we can say, molar mass of H2O. How to find out? Molar mass is the sum of atomic masses of the atoms present in that molecule or the compound. So which atoms are there and how many are there? 2 hydrogen atoms are there plus 1 oxygen atom is there. 2 into hydrogen, its atomic mass is 1 plus 1 into oxygen, its atomic mass is 16. So molar mass of H2O is 18. I think so everyone got these details. Now say atomic mass. We are having the atomic mass of both the atoms which are present in that H2O. Molar mass just now we have calculated. Clear to everyone? So अब ये टेबल खत्म होने के बाद देखो हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। उसमें क्या क्या करते हैं देखो अभी, जैसे कि ये टेबल आपके पास तो होगा ही क्योंकि आप पॉज करके वीडियो पॉज करके टेबल नोट डाउन करोगे हर एक एग्जाम्पल का, इसलिए अभी देखो उसमें क्या था हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन परसेंटेज, अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास 2 into 1, ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, एक का एक ही है, इंटू 100 डिवाइडेड बार मोलार मास कितना आया था अपना 18। सो यहाँ पे हो गया 18 मतलब 2 into 100 डिवाइडेड बाय 18। 2 1 जा 2 9 जा 18 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.11 मतलब हाइड्रोजन परसेंटेज कंपोजिशन इज 11.11%। ये हो गया हाइड्रोजन का। दूसरा आइटम कौन है, वो है ऑक्सीजन एलिमेंट। सो परसेंटेज ऑफ oxygen is equal to number of oxygen atom only 1. So 1 into 16 into 100 divided by 18 because molar mass of hydrogen and oxygen is not different. We have to consider the molar mass of water molecule, that's why equal to, see, 16 into 100 divided by 18. 2 8s are 16, 2 9s are 18. So now see here,
here it will be 11.11. So 11.11 into 8 is nothing but the 88.88 means we can say that 88.89 also. Clear to everyone? So यहाँ पे अपना ये फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया कि जिसमें हमने कैलकुलेट किया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते. देखो अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में समझ में नहीं आया हो तो इसको पूरा देखो और सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, उसमें आपको एग्जाम्पल सिर्फ क्या दिया है वो नोट डाउन करके उसका कैलकुलेशन आपको करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के लिए सेकेंड एग्जाम्पल, दैट सेकेंड एग्जाम्पल इज इथेनॉल. अभी इथेनॉल तो हो गया पर इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इथेनॉल का C2H5OH. ये क्या है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला है. अब इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से पहले वाला जो टेबल बनाया था ना वैसे एक टेबल बनाएंगे. देखो पहला वाला है एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके बाद हाउ मेनी आर देयर मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एटम एलिमेंट, एटॉमिक मास. ठीक है, अभी देखो नाउ सी विच एलिमेंट्स आर देयर, वन इज ए carbon, second one is a hydrogen, third one is a oxygen, again it is hydrogen. So we have to consider that hydrogen, we have to count it twice or only once, we will consider it as a once because we can add this hydrogen here. So its formula will be like that, C2H5 and 1 6 and oxygen. So from the ethanol we have wrote this formula like that. Now see elements, which elements are there, one is a carbon, second one is a hydrogen and third one is a oxygen. ओके अभी देखो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कार्बन के, वो है 2, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन इज ओनली 1. एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, फॉर कार्बन इट इज 12, फॉर हाइड्रोजन इट इज 1 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 16. ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया है जो कुछ भी टेबल फॉर्मेट में लिखने वाला मैटर था वो वाला. अभी हमें क्या करना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है. अभी देखो फर्स्टली कार्बन परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 × 12. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. मोलर मास तो फाइंड आउट ही नहीं किया. अभी यहाँ पे करते हैं, देखो 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16. अभी देखो 12 2 ज़ा 24 प्लस 6 प्लस 16, मतलब इसका मोलार मास आ गया 46. अभी इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 46 करना पड़ेगा. ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 24 × 100 डिवाइडेड बाय 46. ठीक है, इसका कैलकुलेशन हमें करना है. उसके बाद कौन आता है, तो हाइड्रोजन परसेंटेज. अभी हाइड्रोजन परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन परसेंटेज के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 6 × 1 × 100 डिवाइडेड बाय 46 करना पड़ेगा. अभी इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 6 × 100 डिवाइडेड बाय 46. ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा अपना, देखो 24 50, ओके वेट, यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 1200 डिवाइडेड बाय 23 आ गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 46. तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 23 5 ज़ा 15, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 23 5 ज़ा. तो यहाँ पे फिर 50 बच जाते हैं तो 23 2 ज़ा कितना आता है, 46, मतलब 52.17 विल बी द आंसर. सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन इज 12.17. नाउ सी हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना आ गया, देखो यहाँ पे इतना आ गया, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 23 विल बी द आंसर. सो इन दिस वे इफ वी कैलकुलेट 1 रिमेनिंग 70, मतलब 23 ज़ा 3 2 ज़ा 6, मतलब यहाँ पे 13 पॉइंट कितना होगा जाएगा, देखो फिर से 1 रह जाएगा, मतलब 13.7
13.04 will be the answer. 13.04 will be the answer. यहाँ पे समझ में आ गया. अभी लास्ट वन बचा है, वो है ऑक्सीजन परसेंटेज. ऑक्सीजन परसेंटेज में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऑक्सीजन परसेंटेज के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 × 16 × 100 डिवाइडेड बाय 46. मतलब 1600 डिवाइडेड बाय 46. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 23. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 823 69 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, देखो 80 - 69, 10 - 9 1, यहाँ पे गया 1 तो 7 - 6 1 हो जाएगा. मतलब 3 5 आता है 115. सो 4 का यहाँ पे हो जाएगा 27.8% इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन. सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है सेकेंड एग्जाम्पल भी. होप सो आपको हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गया हो. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.